Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and I welcome you to another lecture of our first year English poetry section. Today we'll be doing poem number 8, that is The Hollow Man, written by T.S. Eliot. Thomas Sterne Eliot is actually a poet of 20th century, and he is the poet who wrote vehemently about the dilemma of the modern man. Like, as you all know that in 20th century the world has suffered with two great wars, that is that are World War One and World War Two, and then we had economic depression, and then the Cold War began. So the political scenario was full of agitation, along with the economic depression, which caused number of people or even nations to die with hunger. There were famine and all these things. Then there was a religious depression also. People started questioning God, and they started relinquishing or abandoning the religious faith, and atheism became very common. So these were actually number of conditions that made the modern man a kind of hollow man. Hollow man means the man who is hollow or empty inside. ठीक है, एक ऐसा बंदा जो अंदर से बिल्कुल खाली हो। तो इसी किस्म के खला पर ये पोयम है जो कि लिखी है टी.एस. इलियट ने। लेट मी रीड इट फर्स्ट एंड देन आई explain it line by line. We are the hollow man. We ate the we are the stuffed man, leaning together, headpiece filled with straw. Alas, our right voice, when we whisper together, are quite and meaningless, as wind in dry grass, or rats' feet over broken glass in our dry cellar. Shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. Those who have crossed with the direct eyes to death's one kingdom, death's other kingdom, remember us, if at all, not as lost violent soul, but only as the whole hollow man, the stuffed man. Now let's read it line by line, and then I'll try to explain it. Beta, this is page number 77, so open up your book and be on page number 77, poem number 10, that is The Hollow Man. We are hollow man, we are stuffed man. हम जो है वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, stuffed लोग हैं. Stuff मतलब we do not have anything worthwhile, rather we are stuffed with number of useless things. जैसा stuffed होता है जिसमें आप कोई चीज़ भर दें, कोई चीज़ बाहर से भर दें, उसमें खुद इंट्रिंसिकली कोई वर्थवाइल चीज़ जो है वो मौजूद ना हो. लीनिंग टुगेदर, हम एक दूसरे का सहारा लिए खड़े हैं, यानी कहने का मतलब ये हम इतने कमज़ोर हैं कि हम खुद से खड़े भी नहीं हो सकते. हमारे आइडियल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो सस्टेन कर सकें या हमें जो है वो एक अच्छी फाउंडेशन दे सकें जिस पर हम अपनी लाइफ जो है वो बिल्ड कर सकें. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, और हमारे जो दिमाग हैं वो भूसे से भरे. फिल्ड विद स्ट्रॉ मतलब भूसा भरा हुआ उसमें. कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई अच्छी सोच जो है वो नहीं. अलास, अलास का मायने होता है बेटा जब आप कोई, ये कंजंक्शन वर्ड है, जब आप सॉरी इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन वर्ड, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना सौरो जो है वो इजहार करते हैं अपने सौरो. आवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर, यहाँ से देखें बहुत अच्छी और बहुत वियर्ड किस्म की इमेजरी जो है वो यूज़ की. यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जो पोएम है वो बिल्कुल एक मॉडर्न पोएम है. मॉडर्न पोएम में इमेजरीज भी जो है वो काफ़ी अनकन्वेंशनल है, मतलब ऐसे इमेजेस और मेटाफर्स यूज़ किए जाते हैं जो अब तक यूज़ नहीं किए गए थे. देखें ये क्या कह रहे हैं. आवर ड्राइड वॉइसेस, हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ें जो हैं वो बड़ी खुश सी हैं, यानी कि वो कोई मेलोडी प्रोड्यूस नहीं करती. एंड व्हेन वी विस्पर टुगेदर, और हम आपस में बस सरगोशियाँ करते रहते हैं. और ये जो हमारी बातें हैं, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने भी देखा भी होगा कि टीवी पे टॉक शोज़ होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक्चुअली उनका कोई वर्थ नहीं होती, बस उनमें टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है, या बस एक किलिंग ऑफ टाइम चल रहा होता है, या उस पर तोहमत लग रही है, इस पर तोहमत लगी. तो
is the case here also. They whisper together, they talk about ideas, they talk about progress, they talk about blah 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 blah. Lot of chattering here, chat. But actually these are quite meaningless. ये सब क्या है? Meaningless, फजूल बातें. और ये बिल्कुल ऐसे इनकी आवाज़ें जैसे as wind in the dry grass. जैसे जो सूखी घास खड़ी होती है ना, तो उसमें से जब हवा गुजरती है तो आवाज़ करती है, बहुत शोर करती है, लेकिन उस हवा की शोर का कोई फ़ायदा नहीं, मीनिंगलेस वो शोर है. और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास. और वो ये कैसी आवाज़ है? जैसे जो ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास. अब देखिए टूटे हुए ग्लास की कोई वर्थ नहीं होती, ठीक है. आपका ग्लास टूट गया, इट्स वर्थलेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं. उसमें जब वो पड़ा हो आपके किसी एटिक में, आपके किसी रूम में, सलार मतलब एक एटिक टाइप स्टोर टाइप कोई चीज़, वहाँ पे वो टूटा हुआ ग्लास पड़ा हो और उसके ऊपर से चूहे गुजर रहे हैं, तो जो चूहों की आवाज़, चूहों की पैर की आवाज़ होगी ना, तो उसको कंपेयर किया उन्होंने आजकल की जो हमारी आवाज़ें उनसे. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए बेटा. शेप विदाउट फॉर्म. हमारी शेप तो है, ठीक है, मतलब हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें और हमारी सोसाइटीज़ है, उनकी एक प्रॉपर शेप हमें नज़र आ रही थी, हाँ जी ये है. लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये उनकी कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उसमें. देर इज़ नॉट मच ऑफ यू कैन से सिमेट्री. कोई एक सिमेट्री नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एक ख़ास किस्म की उसकी कोई फॉर्म नहीं है. हैप हैज़र्ड है हर चीज़, फैली हुई, कन्फ्यूजन, केओस एवरीवेयर. शेड विदाउट कलर. हमारा कोई ना कोई शेड तो है, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये किस कलर का शेड है, क्योंकि इतनी मिंगलिंग है चीज़ें, इतनी कंफ्यूज्ड है चीज़ें कि उससे कोई जो है एक एक वेल डिफाइंड आइडिया जो है या वेल डिफाइंड कोई चीज़ जो है वो आगे सामने जो है वो नहीं आ रही. पैरालाइज्ड फोर्स. वी आर फुल ऑफ फोर्स, बट दैट फोर्स इज पैरालाइज्ड. Why? Because we cannot do anything good. Gestures without motion. We just keep standing and gesturing um, with so much fervor, but there is no motion. हम एक ही जगह खड़े होकर मुस्तकिल gestures किए जा रहे हैं. Gestures मतलब अपने हाथों को हिला रहे हैं या अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं, लेकिन कोई मोशन नहीं हो रही, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही. अब थर्ड स्टैंजा में देखिए क्या कहते हैं. दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेथ अदर्स किंगडम. वो लोग जो मर चुके हैं और वो क्रॉस कर गए इस दुनिया से कौन सी दूसरी दुनिया में. रिमेंबर अस, हमें याद रखना. इफ एट ऑल, अगर तुम हमें याद रख सको तो हमें याद रखना. नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल. हम वायलेंट सोल नहीं है. वायलेंट सोल मतलब तशद्दुद वाली या पुरजोश बेइंतहा जो कुछ भी कर गुजर सके, तशद्दुद कर सके, हम ऐसी सोल नहीं है. बट ओनली एज द होलो मैन. आप हमें कैसे याद रखिएगा? ये हम हॉलो मैन है. हॉलो मतलब हम अंदर से खाली और खोखले हो चुके हैं. हमें देखने में अपेरेंटली तो हमारी बड़ी शान और शौकत है, लेकिन अंदर से हम कुछ भी नहीं है. द स्टफ्ड मैन. और हम भरे में फजूल सी चीज़ों से. So we are done with this poem. This poem is quite symbolic and quite pithy in its saying, and it represents very aptly the dilemma of the modern man and the condition of our generation. Let's take a look on the exercise. This is glossary. We have already done it. So let's see the exercise. Choose the correct answer from the options given below. The poets call man hollow. Yes, the poem has been written by T.S. Eliot. The title of the poem is Hollow Man. Hollow Man A. ठीक है, MEN है, यानी कि ये किसकी, पूरी इंसानियत की बात कर रहा है. वी कन्वे नथिंग. हम कुछ भी कन्वे नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी कोहरेंट नहीं है, कंफ्यूज हैं, chaotic हैं. Mark the statement true and false. We are hollow men. Yes, true. We do not whisper together. False. Shape without form. Shade with color. False. Shade without color. We do not learn together. That is true. Okay. Add two more rhyming words. Hollow, follow, gallow. ठीक है. Glass, class, brass, color. कलर का क्या हो सकता है जी? देखें, कलर,
इसी तरह विंड का क्या होगा? विंड का हो सकता है जी रेंड, RIND, एंड देन विंड का आई राइम बन सकता है KIND, काइंड, and there could be number of other. So you better do it by yourself. Write down the missing words in each word. We are hollow man, or rat's feet over broken glass. Remember us if at all not as a lost. हम lost soul नहीं है, violent soul, but वी आर एक्चुअल बट ओनली। ठीक है, बट के बाद कौन सा वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है आप यहाँ भी देख सकते हैं, बट ओनली। गॉट इट? राइट ए क्रिटिकल नोट। अभी अभी मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड बताया पूरे पोएम का बैकग्राउंड ये है कि जैसे हमने बात की कि वर्ल्ड वॉर्स की वजह से और इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से और लैक ऑफ फेथ की वजह से देयर वर नंबर ऑफ देयर हैड बीन too much confusion among the masses, and people has lost their fervor or religious fervor, so they became very much hollow from inside. Why does the poet call modern man as a hollow man? Reason मैंने अभी बताई आपको. What does the poet say in the last stanza of the poem? Last stanza में यही डिस्कस किया कि वो उन लोगों को जो उनसे पहले जा चुके हैं उनको बताता है कि हम लोग जो हैं बिल्कुल stuffed people हैं या lost soul. So this was quite a shorter poem but quite pithy one and lamenting the condition of the modern man. Let's end it here, and tomorrow, or sorry, the next week we'll inshallah start the next poem. Until then, take care, Allah Hafiz, and do mark your attendance.